18 दिन तक इस मेरी बहन को नोचते रहे हैं, ज्यादती करते रहे हैं। अल्लाह शुक्र जी। जनाब नईम भट्टी बात कर रहा हूँ डेली धरती टीवी से। ये देखें जी, देखें कॉल बंद कर दी है जनाब। ये थाना सफदराबाद के एएसआई साहब हैं। उन्होंने ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸ਼ਬਾਜ਼। ਸ਼ਬਾਜ਼। 18 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 5 माह से गिरफ्तार नहीं बंदे हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं सफदराबाद के नवाही गांव नवाकोट के अंदर, जहां पर एक दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त आपको मेरे साथ मेरी एक बहन नज़र आ रही है, नफीसा इसका नाम है। 27 साल इसकी उम्र है और ये शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। इसके साथ इतनी जुल्म ज़्यादती होती है कि बाअसर लोग जो कि इसको अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद इसके साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं और गैंग रेप करते हैं। 18 दिन तक वो दरिंदे जो शख्स हैं वो इस मेरी बहन को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। अब ये मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है। सारी कहानी क्या है ये इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं और इसके बाद ये भी पूछेंगे कि पुलिस का अब तक इनके साथ कैसा बिहेवियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम मेरी बहन? नफीसा। अच्छा नफीसा बहन, ये बताओ कि ये मामला कैसे हुआ और क्या माजरा हुआ, सारी बात जो है मेरी बहन बताओ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਹਮਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਮਰਾਹ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਲੀਆਂ ਮੈਂ। ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਚਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸ਼ਬਾਜ਼। ਸ਼ਬਾਜ਼। ਅੱਗੋਂ ਯਾਸਿਨ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ। ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। 18 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ 18 ਦਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ 18 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਯਾਸਿਨ ਗੁੱਜਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਦਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਾँव ਪਹੁੰਚੀ। ਆਪਣੇ ਗਾँव ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲਏ, हाई कोर्ट आर्डर ले, फिर इन्हें 3 महीने बाद साड़ी FIR दर्ज की थी। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि इस मेरी बहन को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद पुलिस की जानिब से इस मेरी बहन को बाज़याब नहीं करवाया जाता, बल्कि ये मेरी बहन वहाँ से ख़ुद निकल के अपने घर, अपने बच्चों और अपने शोहर के पास पहुँचती है। आगे क्या हुआ? असी हाई कोर्ट आर्डर ले, हाई कोर्ट सानू इन्होंने FIR दी। FIR हो भी गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने इंज जिवें ना डर लगता मुजरमां को, वो उन्होंने फड़दी नहीं। बस हुण तुसीं चलो असीं आने, असीं फड़ लैने। जिहड़ा आकल है ना, उन्हां दी पहुँच इत्थों तक कि जिहड़ा ओहदा भरा है ना पंजाब दा लीडर, ओहदे लगा होया IG दा लीडर आ। DIG दा लीडर है? हाँ जी, DIG दा लीडर है। एक ओहदा भरा आतफ शाह इत्थे लगा बस सिटी शाहकोट थाने विच।
नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अब देखें ये मेरी बहन बता रही है जो आकिल है उसका एक भाई DIG के ऑफिस के अंदर रीडर है उनका, और वो वहाँ से अपने भाई को ये कहता है कि तुम गांव की जो बेटियां हैं जो बहनें हैं उनके साथ जुल्म ज़्यादती करो और जो मर्ज़ी करो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये हमारे मुआशरे का अलमिया बन चुका हुआ है। यानी कि वो वहाँ पर बैठ के यहाँ पर उसके जो भाई हैं वो दरिंदे, सिर्फ इंसान जिनको मैं इंसान नहीं कहूँगा वो दरिंदे हैं, जिसने मेरी इस बहन के साथ जुल्म ज़्यादती की है और उसके बाद 18 दिन तक इस मेरी बहन को नोचते रहे हैं, ज़्यादती करते रहे हैं। उसके बाद ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਕੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਾਕੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। रिश्वत मांगते हैं? ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। अच्छा मेरी बहन ये बताओ इस वाक़े को तकरीबन कितनी देर हो चुकी है? 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 5 माह से गिरफ्तार नहीं बंदे हुए? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਜਾਣੇ ਆ ਫੜਨੇ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਾਣੇ ਆ, बस इन्नी गल कह। नाज़रीन यहाँ पे मैं एक आपको पॉइंट नोट करवा रहा हूँ कि ये देखें ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये कागज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये गरीबों के लिए ये कागज़ हैं, यानी कि ये इनकी मेहनत, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और साफ साफ वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि आप मुलजिमान को पकड़ें और उसके बाद उनको अदालत में पेश करें। लेकिन 5 माह गुजर जाने के बाद अब तक जो वो बाअसर लोग हैं वो अब तक कानून की गिरफ्त से दूर हैं। यानी कि सफदराबाद के जो ASI साहब हैं जो तफ्तीशी हैं इस केस के, वो यानी कि उन बाअसर और उस मुलजमान को गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हुए हैं। यानी कि क्या आपने ये गुंडे पाल रखे हैं कि जनाब आप बच्चियों के साथ ज़्यादती करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं? कैसा कानून है हमारे मुल्क के अंदर? किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। इस मेरी बहन के साथ ज़्यादती हो गई है, 5 माह का वक्त गुजर गया है, अब तक जो मुलजिमान है वो यानी कि कानून की गिरफ्त से भाग रहे हैं। यानी कि यहाँ तो हमारा कानून यानी कि कमज़ोर हो चुका है, या मुलजिमान जो है वो इतने ताकतवर हैं कि आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी नाअहली है थाना सफदराबाद के ASI साहब। अगर आप सुन रहे हैं नवाज साहब तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आपकी नाअहली है। क्या आप कमरों में बैठने की सैलरियां लेते हैं? अभी मैं कॉल भी करूंगा उस तफ्तीशी को, उस सफदराबाद थाने का जो ASI हैं नवाज, उसको मैं कॉल भी करूंगा और उससे पूछता हूं कि आपने अब तक क्या पेशरफ्त यानी कि आपकी इस केस के हवाले से क्या आपने हिकमत अमली अपनाई है, क्या पेशरफ्त है इस केस के हवाले से? सारी बात ज़रा अभी उनसे जानता हूँ, उनको मैं कॉल में ला रहा हूँ और उनसे पूछते हैं। नवाज ASI साहब हैं? नवाज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह शुक्र जी। जनाब नईम भट्टी बात कर रहा हूँ डेली धरती TV से। नवाज साहब लाइव कॉल पे हैं आप ये बताएं कि आपके थाने के इलाके के अंदर, आपकी हदूद के अंदर नवा कोर्ट के अंदर एक वाक़या पेश आया था। नफीसा जो एक बच्ची है उसके साथ ज़्यादती हुई थी और अब तक जो वो मुलजिमान हैं वो आपकी गिरफ्त से दूर हैं, आपने गिरफ्तार नहीं किया उनको और FIR भी हो चुकी है, 5 माह का अरसा गुजर गया जनाब। तो क्या आपने इसमें के अंदर कारकर्दगी, आपकी क्या कार्रवाई की है आपने जनाब? कोशिश कर रहा हूँ गिरफ्तारी करने की। क्या कोशिश कर रहे हैं? कमरों में बैठ के कोशिश कर रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं भाई। जनाब कैसी कोशिश कर रहे हैं कि वो इतने बाअसर लोग हैं कि आपकी गिरफ्त से दूर हैं, कि एक मजलूम है उसके साथ ज्यादती हुई है, 2 बच्चों की वो माँ, गरीब लोग हैं वो। यानी कि आप क्या कर रहे हैं ड्यूटी? आप मुझे ये बता दें नवाज साहब। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सर जी जल्द अज जल्द। ये तो सलियाँ तो आप उनके लवाकिन को दे रहे हैं 5 माह से। मैं 2 दिन बाद आपको दोबारा कॉल करूंगा, तो DIG के साथ मैंने पास आपको मैंने बुलवाना है जनाब, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ठीक है। आपने यानी कि सर आप कमरों में बैठने की ये देखें जी, देखें कॉल बंद कर दी है जनाब। ये थाना सफदराबाद के ASI साहब हैं और कमरों में बैठ के मुझे कहना था चलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश कर रहे होते तो वो मुलजिमान दंदनाते ना फिर रहे होते, इस वक्त सलाखों के पीछे होते। लेकिन अफसोस ये हमारी पंजाब पुलिस है, ये है रियासत मदीना, ये हमारा पंजाब, ये हमारा पाकिस्तान, जहाँ पर एक मजलूम अपने इंसाफ के लिए हाथ जोड़ जोड़ के जनाब वो इल्तमास कर रहा है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। तो अफसोस है। तो मेरी DPO साहब आपसे गुजारिश है कम अज़ कम इस चीज़ का नोटिस लें और इस मेरी बहन को इंसाफ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी जैसे जुड़ेगा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।